See electro potentials worksheet. So first questions, 4 equal charges are placed at the 4 corners of the squares. Look at the diagram already ready. Side is A, and then charge minus q is removed from its center to infinity. So forget about a minus q at the center and think of 4 charge systems, because we are going to use these equations. Okay, work done in removing or in moving any charge between the 2 points where the potential difference between the 2 points is a delta V. So it is a delta V. So Q is the one that is a charge removed. Delta V can be written as a V2 minus V1. अब कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? तो from O to infinity, तो क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं? That is a V2. So that is charge is going to infinity from center. From the center. So that is basically V infinity minus V0. अब V infinity, this V infinity तो 0 है. तो हमें सिर्फ फाइंड आउट करेंगे कि भाई व्हाट इज द पोटेंशियल्स एट सेंटर VO ड्यू टू द 4 चार्जेस एट ABCD. सो लुक एट इट, द पोटेंशियल्स एट सेंटर दैट इज VO कितना हो जाएगा VO. सो दैट रिक्वायर्स दिस डिस्टेंस. डायग्राम देखो, दिस डिस्टेंस, कैन आई से दैट दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, इज दिस डिस्टेंस हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल, मतलब इट इज A बाई √2 का कोई डाउट तो नहीं. That is a by √2. Okay, so therefore and all this distances, that is whether it is a AO हो या फिर या where it is a BO हो या CO D, all the 4 charges are at the same distance of a by √2 from the center. तो 4 charges स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग सीधा ही करेंगे. सो 4 charges, so 4 ओके, K into Q बराबर, मैंने 4Q ले लिया चारों चार्ज और डिस्टेंस एक ही है. So that is equal to, that is a 4K divided by, that is a A by √2. कोई गड़बड़ तो नहीं? ठीक है. ऑप्शंस जो है वो एप्सिलॉन 0 के फॉर्म में, ऑप्शंस नहीं, यहाँ पे आंसर आपको एप्सिलॉन 0 के फॉर्म में लाना है. सो आई विल यूज दैट, आई मीन, एंड दैट इज अ बिट इजी एज वेल. आई मीन 4 into 1 upon 4 pi एप्सिलॉन 0. ठीक है, K की वैल्यू लगा कुछ नहीं, Q ओके इंटू √2, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर ले लेता हूँ, डिवाइडेड बाई A. सो दैट 4 4 कैंसल. सो अल्टीमेटली इट इज √2Q डिवाइडेड बाई, इट इज पाई एप्सिलॉन 0 A. बाई एग्री और नॉट? सो दैट इज हाउ इट इज. सो इट इज अ पाई एप्सिलॉन 0 A. दैट इज अ पोटेंशियल सर्टेनिटी. नाउ यूज दिस वर्क डन इक्वेशंस, ये लगाते हैं. सो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू the charge which is to be moved, this one is a minus q, ऑलरेडी दे के रखा है. ठीक है, V infinity 0 माइनस V नॉट कितना है हमारा, दैट इज ऑलरेडी डन, दैट इज √2Q डिवाइडेड बाई इट्स अ पाई एप्सिलॉन 0 A. सो फाइनल आंसर जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर कितना होगा? व्हाट इज द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर वुड बी, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होगा. इट इज √2Q square divided by pi epsilon 0 A. That's our final answer. Next questions. Potential equation is given A x y y z z x, where x, y and z are the coordinates, or actually in fact they are distance from the origin on x axis, y axis and z axis. I said a distance. ठीक है. So let's respond to the question number 1, which says that what is the dimensions of A. तो भाई dimensional equations or dimensions of A is equal to, that is the dimensions of potential divided by dimensions of this bracket term, which one, that xy plus yz plus zx, barabar, that is of a bracket term. Let's say x is a distance, y is also a distance, so is y and z and x. So it is basically, just look at here, bracket is in fact nothing, it is representing, देखना, it is actually the distance square ही है, कुछ नहीं है. I hope it's clear. It is a distance square ही है. X into y, distance into distance, y into z, distance into distance. So therefore it is a distance square. Now the potential dimensions. तो आपको याद होने चाहिए कि what is the potential dimensions? So potential dimensions are, it is ml2, it is t minus 3 and ampere minus 1. भाई potential के dimension नहीं याद है तो आप ऐसा लग सकते हैं. That is work dimensions divided by charge dimensions. Work is ml2 t minus 2 and charge is a 80. नहीं आता है तो ऐसे कर सकते हैं, करेक्ट.
तो ये आ गया आपका पोटेंशियल डायमेंशन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डायमेंशन, डिस्टेंस इन शॉर्ट इट इज अ लेंथ, सो इट इज अ एल स्क्वायर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, इट इज एम टी माइनस 3 एल स्क्वायर तो कैंसिल, ओके आई राइट इट ओवर हियर, आई मीन मैं ऐसा कर लेता हूँ। So it is a m L square cancel, it is a t minus 3 and this is a minus 1. So that's the answer to the questions A. अब क्या पूछा है, दूसरा क्या पूछा है, लेट्स से कि if A is a 10 find the magnitude of electric field at 1 meter पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लाना है, लेट्स ऐड वन पेज आई मीन, ओके। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशंस ट्राई करते हैं पहले, ओके। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करेंगे, तो ये तो लाना होगा पहले, दैट इज ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी डी एक्स ऑफ पोटेंशियल्स डिफरेंशिएशंस, राइट। नाउ लुक एट हियर, जब मैं x के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशंस होगा और जिसमें x है उसका ही डिफरेंशिएशन होगा, सेंटर टर्म वुड बी जीरो बिकॉज दिस टर्म ये वाई जेड के पास तो x है ही नहीं, सो दैट इज अ जीरो, राइट। तो ये आपको डिफरेंशिएशन लिखना आना चाहिए, से डी वी बाई डी एक्स, ओनली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द x ओनली। तो x के साथ में अगर डिफरेंशिएट करूँ तो क्या होगा, माइनस साइन को बोलना नहीं है, माइनस पहले टर्म का डिफरेंशिएशन y होगा, चलो मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, प्लस जीरो दूसरा का नहीं होगा, जेड एक्स का होगा, सो दैट इज अ जेड, सो दैट इज इक्वल टू देन इट इज अ माइनस वाई प्लस जेड। एक समझ में आया क्या, इसी तरह से इन द सिमिलर वे यू कैन राइट ई वी ऑल्सो, ई वाई ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो माइनस करेक्शंस, इट इज अ माइनस डी वी बाई डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू द वाई, तो वाई के साथ में करेंगे तो जो टर्म में वाई है उसका ही होगा, सो देयरफॉर इट इज पहले टर्म में है, सो दैट इज यस एक्स प्लस इट इज अ जेड, तीसरे का जीरो है, अब डायरेक्ट थोड़ा करो, नेक्स्ट वन इज अ ई जेड, जेड कंपोनेंट इज अ माइनस डी वी बाई डी जेड, सो दैट इज अ माइनस, जिसमें जेड होगा उसका ही होगा, तो दैट इज अ सेकंड एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म में होगी नहीं तो जीरो, सो देयरफॉर डी डी जेड ऑफ अ वाई जेड इज जस्ट अ वाई प्लस डी डी जेड ऑफ ए जेड एक्स इज जस्ट अ एक्स, तो ये तीनों का डिफरेंशिएशन हो गया। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, वो तो आपको आता है तो सीधा लिखना है, दैट इज अ माइनस इट इज अ वाई प्लस it is a y plus z I cap, oh it's a just we made one mistakes, I mean in all these three, I mean there is a given v a एक कोफिशिएंट है वो भूल गए, तो a कोफिशिएंट इज आउटसाइड, नो प्रॉब्लम, देखो मैं भूल गया, दैट इज द क्वेश्चन पार्ट, तो दैट इज अ ए, तो प्लीज यहाँ पे जो होगा ऐसे करें, एक काम करते हैं, लेट्स ओके, सो दैट इज अ ए एंड ए, ठीक है, आई रब दिस पर्टिकुलर पार्ट आउट, आई मीन मैं उसको कहता हूँ और उसको एक, ठीक है, ओके, सो इट्स लाइक दिस, लेट्स टेक द पेन, ओके, सो इट इज अ माइनस, ए को मैंने पहले ही कॉमन कर दिया, ठीक है, ए भूल गया था, वी जस्ट फॉरगॉट द ए, माइनस ए, ओके, एंड देन इन द ब्रैकेट नाउ इट्स करेक्ट, राइट, सो इट इज इन द ब्रैकेट अभी क्या हो जाएगा, दैट इज अ वाई प्लस जेड आई कैप प्लस एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस वाई प्लस एक्स, इट इज अ k cap, correct or not भाई, so that's the expressions of a electric field. now given कि भाई आपको दिया है कि भाई coordinates are find electric field at 1 1 and 1 meter, मतलब कुछ नहीं करना है, and more thing a equal to कितना दिया, that is a 10 SI, okay 10 SI, so how to put this values, तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे लगा देने, this one is x, this is y and this is z, तो solve it, तो जब सॉल्व करेंगे आप लोग सॉल्व करेंगे, सो इन द वेक्टर फॉर्म आई गॉट द आंसर एज अ, मुझे कुछ इस तरह से आंसर मिला था, आप लोग भी चेक कर देना, क्योंकि सबके ये से दिस इज टू दिस इज टू दिस इज टू, तो 2 आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के पे, वो 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो 2 को कॉमन कर लेंगे, सो दैट इज अ -20, चलो कॉमन करके ऐसे लिख दे, -20 आई कैप, ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, -20 जे कैप, सॉरी -20 k cap, by correct or not, so that is how the electric field is, so that's the magnitude of the electric field, कैसे होगा, so therefore electric field magnitude would be equal to, that is under root 20 square plus 20 square plus 20 square, are correct or not,
सो दैट इज 3 टाइम्स 20 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर 3 टाइम्स होगा, माइनस का कोई मतलब नहीं रहता. सो देयरफॉर फॉर मी द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज 20√3 न्यूटन पर मीटर. ठीक है. अब यहाँ पे सम स्टूडेंट्स में हैव अ कंफ्यूजन इन द लास्ट पार्ट. अरे ये वेक्टर आपका वीक है तो मैं क्या करूँ. करेक्ट. So look at it. It is asked that what is the angle subtended by electric field with the x-axis. चलो देखो यहाँ पे E की फॉर्म में बात करें तो हम लोग E की फॉर्म में बात से if a vector E, ठीक है, is represented as a ex I cap plus ey j cap plus it is a ez k caps. ठीक है. मान लो कि x एक्सिस के साथ में ये वेक्टर का एंगल अल्फा है, मान लो y एक्सिस के साथ में एंगल बीटा है. ओके. एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ में बीटा है और जेड एक्सिस के साथ में गामा है. तो भाई ये वेक्टर का फंडा है कि इन दैट केस देन कॉस अल्फा इट इज इक्वल टू दैट एक्स कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन, और वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये है. ठीक है. इसी तरह से कॉस बीटा करेंगे, हमें तो सिर्फ यही पूछा, बट इन दैट केस कॉस बीटा व्हाट वुड बी द कॉस बीटा. चलो लिख देते. कॉस बीटा इज अ वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ई एंड कॉस गामा इट इज इक्वल टू जेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ई. हमें सिर्फ यही पूछा है तो इसके लिए चले जाते हैं. सो देयरफॉर कॉस अल्फा इक्वल टू देन एक्स कंपोनेंट. What is the x component? देख लीजिए. That is a x component is a -20 divided by, okay, magnitude is a 20√3. So that's a -1/√3 is the answer. Third question. चलो, what is the amount of work to be done to move a charge E from center to point E? तो वही है. विल फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस. विच पोटेंशियल डिफरेंस? दैट इज अ डेल्टा वी बिटवीन ओ एंड ई. ये फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे ड्यू टू द 4 चार्जेस. अब सुनो यहाँ पे पॉइंट ओ जो है, मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाया. सिंस पॉइंट ओ, लुक एट हियर, पॉइंट ओ इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम 2 प्लस क्यू चार्ज एंड 2 माइनस क्यू चार्ज. तो ऑब्वियसली पॉइंट, ये हम लोगों ने क्वेश्चन मारा है, तो पोटेंशियल एट ओ इज इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि सारे डिस्टेंस बराबर है. इसी तरह से इफ यू गो बाय द सिमेट्री, लुक एट द पॉइंट ई. ये पॉइंट ई देखो. अब देखो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू के पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. इसी तरह से ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू का पोटेंशियल भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा. भाई समझ में आया. सो देयरफॉर पोटेंशियल्स एट ई इज ऑल्सो 0. तो पोटेंशियल 0 है तो वर्क डन क्या होगा, कोई दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल ही नहीं, तो दैट मीन्स दैट इट इज अ 0. सो आंसर इज अ 0. ये 0 हो जाएगा. द आंसर इज 0. फोर्थ क्वेश्चन. तो डायग्राम बना दिया गया है. डायग्राम इज ऑलरेडी रेडी. साइड पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, that is a 25 centimeter and 60 centimeters. Just check the diagram. Then a sphere of a very small radius 2 centimeter is placed at Q. So given, and the potential is a 9 into 10 to 5. That is actually the surface potentials. ये surface potentials देना है. Sometimes it keeps a hidden. So that is basically 9 into 10 to 5 volt is placed at a Q. मतलब ये surface potential है. So हम कहेंगे कि that surface potential. So for this I mean that is a surface potential which is a 9 into 10 to 5 volt है. इस sphere का ये surface potential है. That is the surface potentials, right? That is 9 into 10 to 5. इतना potential है surface पे. अब surface potentials दिखना है तो हमें तो पता है. So that surface potential is equal to KQ divided by R and that is equal to then 9 into 10 to 5. अब that sphere's radius is already given. स्फीयर की रेडियस कितनी दी हुई है, दैट इज अ 2 सेंटीमीटर. लुक एट दैट, इट्स ऑलरेडी गिवन 2 सेंटीमीटर बोल के रखा है. सो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर फॉर द यू नो दिस स्फीयर KQ इज इक्वल टू 9 into 10 to 5. ये R का साइड चेंज करो. सो दैट इज into R which is a 2 centimeter. 2 centimeter is a 0.02. सो into that's a 0.02. तो ये कितना होगा हमारा, दिस 0.02 के साथ में मल्टीप्लाई करने के बाद. So put that value into the bracket. That is a KQ. अभी
अब ये Q जो है वो डिवाइडेड बाय K करेंगे 9 इंटू 10⁹, तो लेकिन वो नहीं करना है। अब देखो पॉइंट P के बारे में हम कह सकते हैं कि दिस एंटायर चार्ज कैन बी एज्यूम विच वन, दिस Q चार्ज, ये जो Q चार्ज है ना, या KQ बोलो, ये पूरा हम लोग मान सकते हैं कि दैट इज एट ए सेंटर Q, दैट इज एट अ सेंटर Q बाई, करेक्ट और नॉट? तो इस पूरे को हम लोग सेंटर Q पे मान सकते हैं। दिस एंटायर KQ कैन बी एज्यूम, दैट इज अ 9 इंटू 10⁵ into 0.02 कैन बी एज्यूम्ड एज एट अ सेंटर Q, सेंटर Q पे है ऐसा मान सकते हैं। सरफेस पोटेंशियल इज सेम एज बेसिकली द सेंटर पोटेंशियल्स, तो पूरा KQ हम लोग सेंटर पे मानेंगे। और ऐसे भी देखा जाए तो पॉइंट P इज आउट है, तो पॉइंट P आउट है, तो अगर मुझे VP आउट लिखना है ये KQ चार्ज की वजह से कि जो Q सेंटर पे है, यहाँ पे ये KQ आ गया, तो उसकी वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल लिखना है। सो दैट्स वेरी सिंपल, आई मीन ये तो लिखा जाएगा दैट इज अ KQ डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, दैट इज अ RP। अब KQ कितना है, what is the KQ? So that is a 9 into 10 to the power 5 into 0.02 है KQ divided by point, ये कितना है, point, it's a 0.25 by, agree or not? Similarly point R पे इसी तरह से अगर पोटेंशियल लिखना है, so in that case it is same, that is a KQ by RQ होगा, so उसका सिर्फ डिस्टेंस ही अलग है। so let's write it this way, that is a 9 into 10 to the power 5 multiply by 0.02 divided by the distance is now how much it is, the distance is a 0.6 है, correct or not? Okay, so therefore difference in the potentials, difference in the potentials, तो आपको दोनों के, क्योंकि से work is done to take the charge from R to P, तो final P है, so therefore final is a P, so therefore आप VP minus VR लेके आइए, ये रहे ये दोनों इक्वेशंस, यूज दिस टू इक्वेशंस, VP माइनस VR लेके आइए, तो VP माइनस VR जो भी आएगा तो लिख देते हैं, दैट इज अ 9 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 0.02, ये इतना मैं कॉमन कर लेता हूँ, दिस इज टू बी टेकन एज अ 0.02, सो इट इज अ 0.02, करेक्ट, दैट इज अ कॉमन इंटू ब्रैकेट, देन ये कितना होगा 1 अपॉन VP 0.25 माइनस 1 अपॉन 0.6, अरे करेक्ट और नॉट, ये कर लिया, दैट इज अ डेल्टा VP, मतलब डेल्टा V आ गया, तो वर्क डन कितना होगा, व्हाट इज द वर्क डन, सो देयरफॉर वर्क डन इट इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, तो आपको 1 इंटू दैट इज 1 इंटू, इट्स 1 इंटू दैट इज अ डेल्टा V, डेल्टा V इज अ VP माइनस VR, ये आप लोग ऊपर से कैलकुलेट कर लेना, दैट इज VP माइनस VR, जस्ट डू इट, यू विल फाइंड दैट दैट आंसर कम्स टू समवेयर अराउंड, आपका आंसर आ रहा है इट्स अ 42 इंटू 10⁻³ मतलब 42 किलो जूल आएगा, इट्स अ 42 किलो जूल, तो गो फॉर द ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी के लिए जाएंगे आप लोग। वर्क डन टू मूव अ चार्ज 5 कूलम फ्रॉम पॉइंट A to point B अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ 20 जूल, तो कोई बात नहीं, चलो, तो आपको वर्क डन दिया है, दैट वर्क डन इज गिवन, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की थी, कहाँ पे मैं बताता हूँ, दैट इज Q इंटू डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा V नहीं लिखूँगा यहाँ पे, I'll put it as a from A to B, so it is a VB minus VA, VB minus it is a VA, correct, okay, and that WAB is given, how much it is a 20 joule, it is a 20 joule, okay, अब क्या क्या 5 कूलम है, work done to move a charge, so therefore 5 into that is a VB minus VA, A potential is already given, so VB minus A potential is a 10, it is equal to 20 joule already given, so VB minus 10 is equal to 20 by 5 fours, so VB is equal to 10 plus 4, that is a 14 वोल्ट होना चाहिए। मैंने कहा अगेंस्ट द फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है, सुनो सुनो, यहाँ पे डिफरेंस एक 6 भी आंसर दिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 6, अगर यहाँ पे अगर गलती से आपने VA माइनस VA लिख दिया ना, तो आपका आंसर 6 आएगा। देखो यहाँ से A से B में जाया जा रहा है, दैट इज फ्रॉम A टू B जा रहे हैं, ठीक है, A टू B, चार्जेस टेकन फ्रॉम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वे, that is the directions of an electric field. Now potential always basically decreases in the directions of electric field.
इसका मतलब कि जो वी का जो पोटेंशियल है वो वी से कम है, ये भी कॉमन सेंस वाली बात है। तो जो आपका जो डिफरेंस जो आएगा कितना आएगा, दैट इज़ अ वी बी माइनस वी ए वुड बी इक्वल टू 4 आएगा ना। तो वी बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से 4 ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? समझो थोड़ा मैंने जो बोला वो, बिकॉज पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से भी करना है कि ये भी कंफर्म करना है कि भाई बी पोटेंशियल इज मोर देन द ए। तो वी बी माइनस वी ए कम्स टू द 20/5 दैट इज़ अ 4, 20/5 दैट इज़ अ 4। लेकिन बी का पोटेंशियल 4 ज़्यादा रखना है ए के पोटेंशियल से। तो आपको आंसर दोनों दिए थे, 6 भी और 14 भी, तो हमें 14 पिक करना था। So next is a pure differentiation, nothing else. What is the electric field at x equal to 4 micrometer? This part is that in the questions also x is also in the micrometer. वहाँ पे कोई x मीटर वगैरह में नहीं है, तो सीधे x का वैल्यू लगाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। x is already in the micrometer. So say 2 steps I've already written. Electric field is a minus ddx of a v equation given 20 divided by x square minus 4. So 20 बाहर ले लेते बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट, माइनस 20 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर -1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है? सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू देन -20 इज अ -20। ये जो -1 है डिफ्रेंशिएशन इज फॉलोइंग द सिंपल रूट। -1 आप क्या करेंगे, वो आपका मल्टीपल हो जाएगा, आगे आ गया, एंड द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिक्रीजेज बाई 1, वही है x टू द पावर n-1 जैसा ही है। तो इफ इट डिक्रीजेस बाय 1 सो इट इज अ -2, ठीक है। लेकिन ये खत्म नहीं होता, एक्स स्क्वायर का आगे और करना है। सो दैट इज अ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ 2x। तो ये आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन है। सो देयरफॉर फाइनलाइजिंग माइनस माइनस प्लस इनटू दिस 2 दैट इज अ 40। तो देखो मेरा आंसर आ रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव 40x। इट्स अ पॉजिटिव 40x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, नीचे ले लिया क्योंकि पावर -2 है, टू द पावर 2। अब उसमें x बराबर लगा दो 4, दैट्स माइक्रोमीटर में ही दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट x 4 लगा दो। तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू यू विल गेट द आंसर एज अ पॉजिटिव 10/9। सो करेक्ट आंसर इज अ 10/9 वॉट पर माइक्रोमीटर। आंसर भी माइक्रोमीटर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइक्रोमीटर इनवर्ट्स नो प्रॉब्लम। बट पॉजिटिव आंसर दिखा रहा है कि इट इज़ इन द +x डायरेक्शन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना होता है, दैट इज द ऑप्शंस ए आपको जाना है, दैट्स ऑप्शंस ए इज द राइट ऑप्शंस। पॉजिटिव x डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि 10/9 -x भी दिया हुआ लेकिन वो गलत है। आंसर इज अ पॉजिटिव x डायरेक्शन, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू 5 मीटर। r इक्वल टू वेयर, इट इज एट अ 5 मीटर, मतलब यहाँ पे, okay, so that is a r equal to 5। तो नो प्रॉब्लम, e is equal to माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, v वर्सेस x का ग्राफ बनाएंगे। सो दैट इज इक्वल टू द स्लोप। तो ये तो स्लोप ही बोला है कि भाई ये जो पॉइंट जो हमने मार्किंग किया है दिस पॉइंट, लेट्स से दैट इज अ पॉइंट p, यहाँ पे स्लोप कितना है, जो स्लोप आएगा दैट इट सेल्फ इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे स्लोप लिखना आना चाहिए। तो ये तो लाइन है, तो लाइन का ही स्लोप लिखना है। सो लुक एट दिस लाइन, तो स्लोप इज इक्वल टू द डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है। तो डेल्टा वाई दिख रहा है कि नहीं? सो दिस इज अ डेल्टा वाई, ये पूरी लाइन ले लो, पूरा ट्राइंगल ले लो, सो दैट इज अ डेल्टा वाई। सो स्लोप वुड बी इक्वल टू डेल्टा वाई, दैट इज अ 5 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, है कि नहीं? तो डेल्टा एक्स कितना, मतलब ये डिस्टेंस, दिस ये डिस्टेंस, दैट इज अ 6 - 4 दैट इज अ 2। सो दैट इज इक्वल टू 2, ये 2 है। बट पॉइंट इज दैट लाइन देख के पता चलता है कि स्लोप तो नेगेटिव है, सो -5/2 स्लोप है। सो देयरफॉर इट इज अ माइनस इनटू -5/2। So it is a minus minus plus, it is a 2.5 वोल्ट पर मीटर और वोल्ट पर मीटर, ठीक है। सो 2.5 है लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, स्लोप नेगेटिव है। सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलो, 3 चार्जेस आर प्लेस्ड, डायग्राम ऑलरेडी रेडी, -q, कैपिटल Q and -q at equal distance. दिस सिस्टम इज हैविंग अ टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। सो फाइंड द रेशियोज Q by Q। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखो। सो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम्स, डायरेक्ट ही करेंगे। दो चार्ज का पैर ले लो, देयर आर 3 पैर्स। फर्स्ट पैर -k Q इंटू Q, ये दोनों पैर लिया मैंने, डिवाइडेड बाई डिस्टेंसेस a, प्लस सेकेंड पैर, ये पैर ले रहा हूँ। सो दैट इज अगेन अ नेगेटिव ही जाएगा क्योंकि एक चार्ज उसमें नेगेटिव है। सो इट इज अगेन -k Q
Q डिवाइडेड बाय दैट इज ऑल्सो A. कौन सा पैर लिया? दिस पैर इज टेकन. देन द थर्ड पैर, ये तीसरा वाला पैर भी ले लेते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव जाएगा बिकॉज बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव. सो दैट इज अ Q डिवाइडेड बाय व्हाट? इट इज अ 2A. इट इज अ 2A. So Q divided by 2A. अब साइड चेंज करो और सॉल्व करो, सॉल्व इट. सो अल्टीमेटली सॉल्विंग सेज दैट इट इज अ 2KQ. अब चेक करना 2KQ, ये पहले दो टर्म का A ऐसे लिखा और उसको साइड भी चेंज कर दिया तो नेगेटिव साइन चला भी जाएगा. सो दैट इज अ KQ डिवाइडेड बाय A. दैट A कैंसल. सो अल्टीमेटली सॉल्विंग करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? दैट इज अ Q by Q. It is equal to the 4. So it is a 4:1 होगा आंसर. So correct option is option A. Option A आप जाएंगे, ये ऑप्शंस के लिए पिक करना पड़ेगा. दैट इज अ 4:1. अच्छा 4:1. अच्छा ठीक है. सो आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर. दैट इज अ 2, तो ये तो 4 आएगा ना. सो दिस इज KQ, ये है ना 2A है, KQQ बाई 2A है, तो यहाँ पे 2A छूट गया था. I just forgot this 2. Okay, so now just check, I mean that okay, KQ by cancel. ठीक है. So Q by Q, it is equal to the 4. Correct answer. So 4 correct answer is a 4. ठीक है. Next question is also the very much similar question. The only thing is that के charges are placed on the vertices of equilateral triangle. तो ठीक है, आप ऐसे प्लेस करके फटाफट सॉल्व कर ही लिया होगा. आई एम श्योर. आई मीन this is a 2Q charge, this is a Q charge, and there is a Q charge, equilateral triangle, sides are equal. This potential energy of the system is also 0. तो कैसे लिखेंगे potential energy? तीन पैर बनेंगी, K Q 2Q upon A. ये दो चार्ज ले लिया गया. Then I'll take this two charges. तो this two charges is that K Q divided by A by correct or not, plus ये बचा है, सॉरी ये, हाँ चलो एक काम करो, दिस इज बेसिकली फॉर दिस वन. ठीक है. तो ये बच्चा जो है वो दैट इज अ K2QQ डिवाइडेड बाय A. एक ही बात हुई ना, करेक्ट और नॉट? सो दैट इज अ K डिवाइडेड बाय A. ओके फाइन. तो सॉल्व करो उसको एंड दैट इज इक्वल टू 0. उसको पोटेंशियल को उसको 0 से इक्वेट करो. तो जस्ट सॉल्व कर लेते हैं. Q और कैपिटल Q वाला ऐड हो जाएगा. So that means that adding will give me 3KQQ divided by A. इस दोनों को मैंने ऐड कर लिया और इसका साइड चेंज कर लेते हैं. सो दैट इज अ -2KQQ बाई A. इसका साइड मैंने चेंज कर लिया. अच्छा, तो ये कुछ अलग सा आंसर आ रहा है. सो दैट फॉर KQ बाय कैंसल. सो Q आपका निकल क्या आ रहा है? सो -2/3Q. सो -2/3Q. थोड़ा देखो तो कहाँ पे -2/3Q दिए हुए है? हाँ या इट इज़ अ ऑप्शंस बी. सो इट इज़ अ ऑप्शंस बी के लिए जाना है. दैट इज़ अ -2/3Q. हाँ माइनस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम. सो मॉडल ऑलरेडी शोन. Okay, proton in the center, electron revolving. It's a 1 electron 1 proton systems. Okay, the atomic radius is a 0.53 into 10⁻². See, to build this system, certain work been done, that is a change in the potential energy. So that is equal to U final minus U initial. मतलब मानना है कि those electrons and protons were earlier at infinity. So that means that if earlier they were at infinity, the system's potential energy would be 0. Now they are as per they are basically a particular point in the space. तो वो आपका UF हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे ये UF जो है वही क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स हो जाएगा. सो दैट इज़ अ UF ऑफ द सिस्टम्स. ओके, जहाँ पे दोनों को इन्फिनिटी चला है. तो ये तो इजी है. व्हाट इज़ द UF दैन? दैट इज़ द ये Q प्रोटॉन Q इलेक्ट्रॉन KQQ डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू R. अब यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज आपको उसके साइन के साथ में लगाने हैं. याद रखना, सिर्फ प्रोटॉन्स चार्ज मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और फाइनल वैल्यू लिखने वाला हूँ. QP इज़ अ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम लगाना. आप आंसर चेक करना. QE जब लगाने की बार आई तो -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम लगाओ. यूज दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशंस. ये इक्वेशन लगाओ. R इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻10. सो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स. आप उसको UF कह सकते हैं, ये U बोल सकते हैं, डेल्टा भी बोल सकते हैं, जो भी. ठीक है. तो जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका -43.7 इंटू 10⁻
10⁻⁻19 जूल होगा, दैट्स अ -19 जूल। आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए आप क्या करेंगे, दैट इज डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, करेक्ट। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे जाया जाता है, तो डिवाइडिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। तो ये जो आंसर जो हमारा जो आ रहा है, दैट आंसर कम्स टू -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स। ये सिस्टम्स की पोटेंशियल एनर्जी है। अब पूछा है व्हाट इज द kinetic energy and then what is the minimum work required to free the electron। तो to free the electrons we need to know the total energy भी हमें पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, उसके लिए थोड़ा अलग से देखना। सी सर्कुलर मोशंस में और SHM में भी आपको बताया गया था कि इफ़ द काइनेटिक एनर्जी अगर x होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो -2x होती है, और जो टोटल एनर्जी जो होती है, द टोटल एनर्जी इट इज़ इक्वल टू द -x होता है। काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होती है लेकिन -x होती है। तो इन दैट केस आई मीन आपका एस्केपिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, एस्केपिंग एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर ही होती है, बट दैट इज़ ऑफ अ पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी आ चुका है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी, लुक एट हियर, तो काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट हाफ एंड दैट इज टू द पॉजिटिव। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम्स होगी वो कितनी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि पॉजिटिव साइन ही लेना है, डिवाइडेड बाई 2 ही करना है, करेक्ट और नॉट। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो आंसर आया है हमारा -27.2। सो इट इज अ माइनस कहाँ लगा रहा हूँ, तो पॉजिटिव ही लेना है ना, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सो दैट इज अ 27.2 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज अ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, और वही उसकी एस्केपिंग एनर्जी भी होगी, दैट इज इक्वल टू द एस्केपिंग एनर्जी ऑल्सो। सो देयरफॉर एस्केपिंग एनर्जी भी तो उतनी ही होगी। सो देयरफॉर एस्केपिंग एनर्जी, ग्रेविटेशन याद है कि नहीं, एस्केपिंग एनर्जी भी उतनी ही होगी, बस वही है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितनी एस्केपिंग एनर्जी वही वर्क है, W इज इक्वल टू डेल्टा के भी आप बोल सकते हो। सो दैट इज इक्वल टू द 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही उसका वर्क डन है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। ओके, जितनी टोटल एनर्जी उतनी तो देनी पड़ेगी, तो ही तो रिलीज होगा, दैट इज गिवन इन फॉर्म ऑफ अ वर्क। अब सी पार्ट देखिए क्या कहता है सी पार्ट, सदा को व्हाट द आंसर्स ऑफ ए एंड बी की जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज 1.06 सेपरेशंस। मतलब हम लोगों ने सुनो, अलग कलर से बताता हूँ, ये जो आपने जो UI जो जीरो ले लिया वो UI जीरो नहीं है, दैट इज नॉट जीरो, दैट इज बेसिकली द UI कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस डिस्टेंस है अभी, क्योंकि इन्फिनिटी पे था तो जीरो था, तो कोई बात नहीं, सेम स्ट्रेटेजी विल यूज, आई मीन उसी मेथड को यूज करेंगे। तो देयरफॉर डेल्टा U वही हमें करना है, दैट इज UF माइनस UI। अब ये जो UI जो आएगा दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू व्हाट, इट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट गिवन डिस्टेंस। कितना बोला है, 1.06 इंटू 10⁻⁻10 मीटर पे लेना है आपको, तो नो प्रॉब्लम, इक्वेशंस तो सेम है। देखो UF तो ऑलरेडी आपका आ चुका है ना, वो तो कितना आ चुका है, दैट इज अ -27.2 विद रिस्पेक्ट टू द इन्फिनिटी, ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये ऑलरेडी आप लोगों का वही आंसर भी आने वाला है, वापस करने की कोई जरूरत नहीं। माइनस अब ये देखो ये UI, तो UI मैं वापस से लिख के दिखाता हूँ, दैट इज लुक एट दैट K इंटू के, मतलब के रखता हूँ, बाद में 9 इंटू 10⁻9 लगा देना, that is a 1.6 into 10⁻⁻19 protons charge multiply by -1.6 into 10⁻⁻19, ओके, के क्यू पी क्यू ई लगा दिया, डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पे R कितना लगाना है, तो R लगाना है अपना 1.06 इंटू 10⁻, दैट इज अ -10 लगाना है, लेकिन ये तो जूल में अभी तो किया है, लेकिन हमें तो ये पहला वाला लुक है, फर्स्ट टाइम इज एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कोई बात नहीं, 1.6 into 10⁻19, तो सेकंड टाइम इज ऑल्सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको सॉल्व करना है, तो ये आंसर हमारा आता है, दैट इज अ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया, दैट इज अ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दैट मीन्स दैट द टोटल वर्क रिक्वायर्ड नाउ इज अगर मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सो दैट इज अ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये इतनी होगी तो व्हाट अबाउट अ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज कैसे लिखा है हम लोगों ने, देखो यहाँ पे मैंने दिखा था, काइनेटिक एनर्जी से मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होता है, तो जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 13.6 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, सो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी इफ द रेफरेंस पॉइंट इज चेंज्ड।